Hello everyone, welcome back guys. Today we are going to start with electrochemistry as you can already see over here. So electrochemistry is the most important topic for CET, right? At least on an average in each and every paper there are at least 3 questions which are asked regarding the topic of electrochemistry chapter, ठीक है? So again as we have covered for solid states, पहले ही मैंने कुछ examples solve करके रखे थे. Initially I have solved few examples and then we continued further to save our time. Similarly, in these videos, this video also, you are going to see few pre-solved questions so that our time will be saved. I'll be explaining everything how we have solved and all things will be covered. ठीक है? But for our time saving purpose, I have already solved few of the questions. ठीक है? So electrochemistry is starting with first we are having introduction. ठीक है? So in introduction we are having what conductors we know there are two parts. One are electrolytic conductors and other one are electronic conductors. Electrolytic conductors means what? Aqueous solutions. We add solute in solvent and we get a solution. If that solution is conducting and the conductivity if increases, then we have added electrolyte in it. तो जब electrolyte हम पानी में या फिर solvent में जब हम electrolyte डालते हैं तो वो electrolyte क्या करता है? Current transfer करने में help करता है. So those all things we have generally you all know. So electrolytes are of 3 types. Electrolytes are of 2 types, weak electrolytes and strong electrolytes. While as third type is of non-electrolytes. Electrolytes are of 2 types, strong electrolytes and weak electrolytes. Electrolytes are those which give you plus and minus ions. तो weak electrolytes हमने पहले ये इसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने देखा ही थे. तो weak electrolytes में क्या रहेंगे? Weak acids and weak base will be considered under weak electrolytes. And strong electrolytes में क्या रहेंगे? Strong acids and strong base will be considered under strong electrolytes. While as non-electrolytes में कौन आएगा? Urea, sugar. These are few of the examples of non-electrolytes. Now, what is the role of non-electrolytes? When we add non-electrolytes in water, there is no change in the conductivity. When we add electrolytes, the conductivity increases. ठीक है? तो समझो solution है, solution का initial कुछ conductivity है. जब आप non-electrolyte डालोगे तो उसमें तो कुछ change होने वाला है नहीं. बट जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है. ठीक है? सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स. अभी हमें मालूम है मेटालिक कंडक्टर्स है. मेटालिक कंडक्टर्स मतलब हमारे आजू बाजू में तो हमें मालूम ही है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है. दोज ऑल आर गोल्ड, सिल्वर, दोज ऑल आर मेटालिक कंडक्टर्स विच हेल्प फॉर कंडक्शन ऑफ करंट. ठीक है? तो समझो हमारे पास हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होने वाला है? मेटल्स में क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है. रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है. व्हाइल एज जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देखोगे, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है एंड कंडक्टिविटी बढ़ती है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अगर है, एक्वेस सॉल्यूशन अगर है, तो एक्वेस सॉल्यूशन का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है. While as metallic conductors का जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे कंडक्टिविटी घटती है. ठीक है? So these points are there for conductors. Then these are few basic terms and units. ये बहुत जरूरी है हर एक टर्म का, क्योंकि सीईटी में इसके ऊपर यूनिट्स के ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं. So what we are having over here is resistance का यूनिट क्या है? ओम से. Resistance is represented by R. Resistivity is represented by rho, which is also known as proportionality constant. तो जब आप रेजिस्टेंस के बारे में लिख रहे हो तो रेजिस्टेंस is directly proportional to, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो आप क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल कांस्टेंट. ठीक है? तो ये बी जो है वो क्या है? सेल कांस्टेंट है. तो हमने क्या किया? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वेट किया है रेजिस्टिविटी से, एंड बी इज सेल कांस्टेंट एंड सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल बाय ए. ठीक है? एल क्या है? एल इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है? L is distance between two electrodes and A is cross sectional area. ठीक है? A is cross sectional area of those electrodes. Is this clear? तो L यानी क्या? Distance between two electrodes. L is distance between two electrodes. समझो ये इलेक्ट्रोड है, तो इन दो इलेक्ट्रोड्स में जो डिस्टेंस है वो L होगा
और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, ठीक है। फिर बाद में कंडक्टेंस का क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, देन कंडक्टिविटी के विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपा, सो कैपा इज इक्वल टू बी बाय आर, बी इज अगेन सेल कांस्टेंट, आर इज रेजिस्टेंस। इसी को आप क्या कह सकते हो, कैपा कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज जी इंटू बी, ठीक है। कैपा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज जी इंटू बी, ठीक है। मतलब 1/r के जगह पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट g कर दिया एंड b को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखो। देन वी आर हैविंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू 1000 k by c। अगेन हियर k इज कैपा एंड c इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके आगे अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि पहले से कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके रखे हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ वी हैव सॉल्व दिस एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है, हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये प्रोवाइडेड है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। अभी NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड है, यानी मतलब हमें लैम्डा वैल्यू दिया है 9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमें अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, लैम्डा अपन लैम्डा 0। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज नहीं पूछा है तो खाली क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। तो यहाँ पे लैम्डा 0 की जो वैल्यू हमने निकाली है, वो लैम्डा 0 की वैल्यू हमने निकाली है बाय द यूज ऑफ कोहलर्स लॉ, ठीक है। कोहलर्स लॉ के इस्तेमाल से हमने ये लैम्डा वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे निकाला है। तो हमें क्या मालूम है, एक कंसेप्ट हमें मालूम है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया है मोलर कंडक्टिविटी एंड यहाँ पे हमने प्लॉट किया है समझो कॉन्सेंट्रेशन। वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझो हमने NaCl डाला है पानी में एंड वी आर चेकिंग द कंडक्टिविटी एज वी कीप ऑन डाइल्यूटिंग दैट सॉल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा वैसे कंडक्टिविटी में क्या चेंज हो रहा है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऑन x axis we have plotted square root of c and on y axis we are having lambda, that is molar conductivity. Now when we are having a strong electrolyte we get a graph of like this where it is having negative slope, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, एंड द line is intersecting at a point and that point is known as molar conductivity at infinite dilution। तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। बट समझो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, ये जो है ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो कैन वी फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, द graph of weak electrolyte is getting parallelized with the y-axis, तो वो इंटरसेप्ट मिलने ही नहीं वाला। तो कोहलर ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, उनका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये एप्लीकेशन है कोहलर्स लॉ का, ठीक है। सो कोहलर्स ने हमें क्या बताया कि सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए है, इसमें से आगे अगर हमें NH4OH का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, NH4Cl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस NaOH का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों ऐड कर लेंगे। अभी इन दोनों में से हमें कौन से आयंस चाहिए, खाली NH4 वाला आयन चाहिए एंड OH वाला आयन चाहिए। तो हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन हमने सेपरेट कर लिया। तो कोहलर ने क्या बताया है हमें कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दो आयंस देगा, Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस देगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जब हमें ये आयंस मिलेंगे, ठीक है, ये आयंस हमें जब मिलेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ईच आयन बिहेव्स इंडिविजुअली, each ion behaves individually and each ion contributes in the conductivity।
ठीक है। तो जो कुछ भी कंडक्टिविटी आपको मिलती है वो कंडक्टिविटी इन दोनों आयंस की वजह से मिलती है। तो समझो आपने NH4Cl का लिखा, तो NH4 प्लस की कंडक्टिविटी अलग होगी, Cl माइनस की अलग होगी, यहाँ पे Na प्लस की अलग होगी, OH माइनस की अलग होगी, वैसे ही हम NaCl की होगी। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 4 आयंस है उनके कंडक्टिविटी में से Na एंड Cl माइनस के आयंस की कंडक्टिविटी हमने सबट्रैक्ट कर ली। ठीक है। सो दिस इज कोलर्स लॉ। तो इस एप्लीकेशन से हमें वैल्यू क्या मिला है, वी गेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज 213 वैल्यू है। तो 213 यूनिट क्या होगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका भी सेम यूनिट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें प्रोवाइडेड है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, ये डिवाइड कर लिया, तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या मिलता है 100/23। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें, सॉरी 26, 100/26 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलता है। तो अपना डी आंसर होगा। ठीक है। तो ये पार्ट है पहला एग्जांपल हमारा। दूसरा एग्जांपल जो है वही उसी के ऊपर बेस्ड है, लैम्डा वैल्यू के ऊपर। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH। मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया है 20, दिया है हमें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। ओके। तो ये 2 इंटू 5×10⁻⁵ मोल्स, ये कॉन्सेंट्रेशन है 20 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का पार्ट है। अभी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो प्रोवाइडेड नहीं है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए, जैसे हमने पहले ही देखा, कोलर्स ने हमें क्या बताया है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस एंड H+, हर एक इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये क्या मिलेगा, 50 प्लस 350, तो ये आता है 400। इसीलिए हमने क्या किया, 20/400 कर लिया, एंड वी गेट द वैल्यू एज 5×10⁻²। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो तो मैंने शुरुआत में ही दे दी है, उसका आंसर है ओम मीटर। ठीक है। अभी फोर्थ एग्जांपल जो है, इसमें मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है Al2SO4। अभी इसमें यहाँ कहीं पर भी हमें Al2SO4 का कंपाउंड वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, बट यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है, एल्यूमिनियम पे चार्ज दिया है एंड SO4 का चार्ज मालूम है। तो जैसे हमने 10th में किया है, जैसे कंपाउंड्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कंपाउंड होगा वो देखा है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कंपाउंड कौन सा मिलेगा, Al2SO4 थ्राइस, ये कंपाउंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 एल्यूमिनियम आयंस है एंड 3 सल्फेट आयंस है। ठीक है। तो ये जो 2 एल्यूमिनियम आयंस मिले हैं, उन 2 एल्यूमिनियम आयंस की कंडक्टिविटी हमें क्या प्रोवाइडेड है, 189 प्रोवाइडेड है। सो 2 इंटू 189 प्लस 3 इंटू SO4 2 माइनस का क्या है 50.1। अभी मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंड अप कर रहा हूँ। तो 189 का मैं क्या करूंगा, 190 लिखूंगा, प्लस 15 3 आपको मालूम है वो होगा 150, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज हम ऐड करेंगे। सो 190 इंटू 2 लिख रहा हूँ, सो 2 इंटू 190 प्लस 150। सो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द आंसर, एंड दैट आंसर इज क्लोज टू 530 आता है, अप्रोक्सीमेटली वी गेट द आंसर एज 528। ठीक है। आगे, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड है, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपा, मतलब कैपा दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दिया है 50 ओम्स, एंड आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, K इंटू R इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस दिया है 50 इंटू कैपा की वैल्यू प्रोवाइडेड है 0.012। तो ये जो सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलता है आंसर वो होता है 0.06 पर सेंटीमीटर। ठीक है।
नेक्स्ट अभी हम कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सॉरी। तो कोलार्स लॉ तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। कोलार्स लॉ क्या बताता है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन सेपरेट हो जाएगा, इंडिविजुअल अपनी अपनी कंडक्टिविटी देगा, दैट इज कोलार्स लॉ। ठीक है, सो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है वो रिएक्शंस इनिशियली ही स्पॉन्टेनियस होती है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का जो प्रोसेस है वो हम कंट्रोल करके, या फिर वी स्टडी दोज spontaneous processes and use that process to generate electricity, while as इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम कैरी आउट करवाते हैं। मतलब समझो मुझे गोल्ड प्लेटिंग करना है, तो गोल्ड प्लेटिंग ये तो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैंने समझो मेटल गोल्ड में डाल दिया और बोला कि नहीं मेटल प्लेट हो जाएगा, गोल्ड प्लेट हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। यू नीड टू कैरी आउट दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, so non-spontaneous processes are carried out to carry out the chemical reaction. So electrical energy is used to carry out those non-spontaneous chemical reactions. ठीक है, तो आगे एनोड हमेशा क्या, एनोड पे हमेशा दोनों सेल्स में एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है दोनों सेल्स में। तो क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड निगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैथोड वाइस वर्सा, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल में, कैथोड निगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोलिटिक में। ठीक है, अभी इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक्सटर्नल कुछ पोटेंशियल सोर्स वगैरह कुछ लगता नहीं है। ठीक है, व्हाइल एज इस सेल को कैरी आउट करने के लिए आपको एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत है, या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाला जो डिवाइस है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उसके ऊपर आगे दिया है, वी आर हैविंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। ये दो पार्ट्स हमें प्रोवाइडेड है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl में क्या किया जाता है, सॉलिड NaCl लिया जाता है, उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो वो जो लिक्विड NaCl है, उस लिक्विड NaCl में आप क्या करते हो, दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, एंड देन यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी उस मोल्टन NaCl में खाली दो आयंस आपको मिलेंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो नेचुरली जो Na प्लस है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जो Cl माइनस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है Na प्लस, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। तो Na प्लस जा रहा है कैथोड की तरफ, Cl माइनस जा रहा है एनोड की तरफ। तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस बनते हुए दिखेगा, कैथोड पे आपको सोडियम मेटल डिपॉजिट होते हुए दिखेगा फॉर मोल्टन NaCl। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हमारे पास दो आयन है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस क्या करने वाला है, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। वैसे तो Na प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म सॉलिड सोडियम, बट हमें क्या करना है, ये जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने वाले हैं, सोडियम के पास जाने वाले। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दो सोडियम आयंस के साथ रिएक्ट होके आपको दो सॉलिड सोडियम एटम्स देते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 2 मोल्स इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो चार्ज कितना गया होगा, एक्सचेंज हुआ होगा, तो 2 फैरेड इतना चार्ज एक्सचेंज किया होगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही फैरेड का चार्ज आपको मिलेगा। सो इफ यू आर हैविंग 2 electrons exchanged in this process, you are going to have 2 farad of current formed over there. ठीक है, now in electrolysis of aqueous NaCl, now if you are talking about aqueous solutions, we know in water we are having H plus and OH minus ions, right? तो उन H plus and OH minus ions के साथ और कौन जा रहा है, हमने NaCl डाल दिया, इसीलिए
Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सेपरेशंस किए, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस एक जगह पे, H प्लस पॉजिटिव आयंस एक तरफ, OH माइनस एंड Cl माइनस निगेटिव आयंस एक तरफ। अभी ये जो दोनों आयंस है, दोनों आयंस किसके तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ रिड्यूस होने के लिए जाएंगे, ठीक है। while as OH एंड Cl माइनस आयंस में से दोनों आयंस किसके तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे ऑक्सीडेशन के लिए। बट इन दोनों में से एक ही आयन ऑक्सीडाइज होगा एंड इन दोनों में से भी एक ही आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होता है? अगर H प्लस एंड Na प्लस अगर आप देखोगे तो कैथोड पे H प्लस क्या होता है? H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके, सॉरी, H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा? कैथोड पे रिडक्शन करेगा, सो इट विल गेट हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ओवर देयर। तो ये जो 2H प्लस आयंस है, 2H प्लस आयंस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो कैथोड पे हमेशा क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। while as OH माइनस एंड Cl माइनस आयंस में से कौन सा आयन जाएगा जल्दी ऑक्सीडेशन होने के लिए? एनोड जाएगा। तो आपको क्लोरीन से कैसे मिलेगा? हियर यू विल गेट 2 Cl minus ions will give you chlorine gas with loss of 2 electrons. तो हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा एंड एनोड पे आपको कौन सा गैस मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। ये याद रखो, ठीक है। तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अभी जो बचे हुए आयंस है Na प्लस एंड OH माइनस, वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके NaOH बनाते हैं। सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। तो जब NaOH बन रहा है तो उसी के साथ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ये दोनों गैसेस भी लिबरेट हो रहे हैं, ये याद रखो, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा पहले एनोड का इलेक्ट्रोड लिखा जाता है, फिर एनोड सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट ब्रिज लिख के होने के बाद कैथोड सॉल्यूशन एंड देन कैथोड इलेक्ट्रोड। तो ये जो सिंगल लाइंस है, सिंगल लाइंस रिप्रेजेंट फेज बाउंड्री, डबल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज एंड इसको, इस पार्ट को हम कहेंगे एनोड हाफ सेल। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एनोड हाफ सेल एंड this part will be known as cathode half cell, ठीक है। this will be called as cathode half cell, ये याद रखो। तो हमेशा एनोड का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड का हमेशा रिडक्शन होगा, ये याद रखो, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखा है। फैराडेज लॉ, 2 लॉज है फैराडे के। पहला लॉ है कि अगर मैंने करंट पास किया है फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होने वाला है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट का करंट पास हो रहा है, ये सब जो स्टडी किया जा रहा है वो क्या होता है? इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। तो अगर मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टाइम के लिए करंट अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ क्या करता है? समझो 2 सेल्स है, मैंने 2 सेल्स सीरीज में लगा दिए एंड उन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है फॉर सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। इफ आई एम हैविंग 2 सेल्स, लेट अस से, यही वाला फॉर्मूला हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट अस से आई एम हैविंग 2 सेल्स जिनमें I1 and I2 both are same and T1 and T2 both are same। मतलब करंट, सेम करंट पास हो रहा है सेम अमाउंट के लिए दोनों सेल्स में से। अगर सीरीज में है तो वो तो सेम ही होने वाला है। तो वो ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट डाउन एज, ये N1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये वाला यहाँ का N1, तो हम क्या लिखेंगे? W1 इंटू N1 अपॉन M1 लिखेंगे इसके लिए, इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 W1 M1, ठीक है।
अभी ये I1 एंड I2 बोथ आर सेम, तो इसके लिए मैं सिंबल खाली IT रख रहा हूँ। अगर दूसरा सेल आप देख रहे हो तो W2 N2 अपॉन M2 इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। तो ये दोनों इक्वेशंस जब हम इक्वेट कर लेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन फैराडेज सेकेंड लॉ। तो दो सेल्स अगर आप सीरीज में लगा रहे हो, तो दोनों सेल्स अगर आप सीरीज में लगा रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट है एक सेल के लिए, ये पार्ट है दूसरे सेल के लिए। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल जैसे आएंगे वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया है, हाउ लॉन्ग शुड एक्वियस NaCl बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग। अभी हमें क्या पूछा है, टाइम। हाउ लॉन्ग शुड एक्वियस NaCl बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब टाइम पूछा है, करंट प्रोवाइडेड है एंड हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो दो पार्ट से अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू 1 अपॉन N1 इंटू M। अभी ये 1 अपॉन N जो लिखा है उसको ही मोल रेशियो भी कहा जाता है, एंड N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, या उसको वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। मतलब रिएक्शन प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, लूज किए जा रहे हैं, जो कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस में इंक्लूडेड है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहोगे, वैलेंसी फैक्टर कहोगे। तो अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, कौन फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2Cl माइनस। 2Cl माइनस कहाँ से आए, हमारे पास NaCl दिया हुआ है, NaCl में Cl निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो मैंने निगेटिवली चार्ज क्लोरीन एटम यहाँ पे ले लिया है। तो ये क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस रिएक्शंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, इसीलिए 1/2 लिखा है। तो 1/n के जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो हमें करंट दिया है 100, टाइम को मैंने x अज्यूम कर लिया, 96500 दिया हुआ है, एंड 1/2 लिखा है। 2 कहाँ से आया ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 96500। अभी ये जो 0.5 है एंड 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आपको 1 ऐसा देंगे, एंड आंसर क्या आएगा, 965 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2 बाय रिडक्शन ऑफ H+। तो अभी हमें क्या दिया है, H+ से हमें बनाना है H2 गैस। तो सबसे पहले हमें क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे ऑफ कोर्स। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लगेंगे टू फॉर्म H2। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना फैराड चार्ज एक्सचेंज होगा, ये मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 फैराड। तो आंसर क्या होगा, 2। What is the charge required to convert 2 moles of KMnO4 to MnSO4? तो MnSO4 कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या दिया है, KMnO4 दिया है, गेटिंग कन्वर्टेड टू MnSO4। अभी इसमें Mn का चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन सेट +7 है, MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन सेट है +2। अगर इसमें देखोगे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, बट हमें मोल्स कितने दिए हैं, 2 मोल्स दिए हैं। 1 मोल ऑफ Mn 5 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, 1 मोल Mn 5 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है। तो 2 मोल Mn कितना एक्सचेंज करेगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे तो फैराड भी कितना रहेगा, 10 फैराड रहेगा। सो आवर आंसर इज 10 फैराड। ठीक है, अभी इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी नंबर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर ये आपको मॉलिक्यूल्स देगा। तो अगर उसमें आपने नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो y की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू Na होगा। तो हमें क्या करना है, खाली नंबर ऑफ मोल्स निकालने इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या मालूम है, हमें दिया गया है कि L3+ दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2 एटम एल्यूमिनियम के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2Al3+ लिखेंगे। 2 एल्यूमिनियम के लिए
एल सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो 6 मोल्स आपको दे रहे 2 मोल एल्यूमिनियम। तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 0.1 एल्यूमिनियम के लिए आप क्या करोगे? 0.1 मोल एल्यूमिनियम अगर है यहाँ पे 2 मोल्स को 2 मोल्स मिल रहा है, तो 0.1 मोल के लिए भी ये क्या होगा? 0.1 मोल ही होगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? 0.1 मोल लिखा है। तो 6 मोल चाहिए 2 मोल्स के लिए, तो 0.1 मोल के लिए कितना मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 0.3 मोल। तो n इंटू Na करके हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे? 0.6 इंटू 0.3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर क्या आएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, अगला वाला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस AlCl3 by passing 1 farad इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो 1 farad इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करनी है? पास करनी है। तो जब आप AlCl3 ले रहे हो तो एल्यूमिनियम के कितने आयन्स मिल रहे हैं आपको? एक ही आयन मिलेगा। तो वो एल्यूमिनियम एक क्या होगा? +3। तो एक एल्यूमिनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा टू फॉर्म 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड, राइट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस AlCl3? अभी ये क्या है? 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैरड इतना हमें क्या लग रहा है? 3 फैरड इतना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, चार्ज लग रहा है। तो 1 फैरड में कितना आएगा? तो हमें क्या करना है? खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1/3। तो वो आंसर आ जाता है 0.333 मोल्स के लिए। ठीक है, अभी हाँ, गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल, तो 2 टाइप के सेल हमें मालूम है, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सॉरी, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तीनों सेम है। वोल्ट अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग है। ठीक है, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस ऑल आर सेम। खाली अलग कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग है इन तीनों में से। अभी इसमें कंपोनेंट्स कौन से गैल्वानिक सेल में कंपोनेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं? सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कर रहा है एनोड की तरह एंड Zn काम कर रहा है कैथोड की तरह। अभी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0 वोल्ट्स हमेशा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 वोल्ट्स होता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो उस प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम सेकेंडरी रेफरेंस स्टैंडर्डाइज करते हैं एंड देन वी यूज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स फॉर एनी अदर पर्पसेस। ठीक है, तो हर जगह पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो यूज किया नहीं जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। मेंटेन करना, हाइड्रोजन का प्रेशर मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ इट। तो ये जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उस प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं टू गेट सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स एंड दोज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट और उनका पोटेंशियल हमें मालूम होता है, दिया हुआ होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे दोनों तरफ से काम करेगा, एनोड के तरफ से भी काम कर सकता है या कैथोड की तरफ से भी काम कर सकता है। तो अगर कैथोड की तरफ वो अगर लिखा होगा तो वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है, हाइड्रोजन का प्रेशर मेंशन किया है एंड प्लेटिनम ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ओके। अभी इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ है तो उसके ऊपर प्रोसेस कौन सा होने वाला है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में n की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी। ठीक है, वैसे ही अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ है तो उसका क्या होने वाला है?
रिडक्शन होने वाला है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव हाइड्रोजन गैस। इसमें भी n की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है, क्योंकि दोनों प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज किए गए हैं। ठीक है, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे आपको क्या दिया है, पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ द सेल। तो ये जो H प्लस है, हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2 प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn सॉलिड। तो ये जो निगेटिव है, एनोड इज ऑलवेज निगेटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, अभी हम जो पूरा बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए। तो जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निगेटिव होगा वो हमेशा एनोड होगा, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो हमेशा कैथोड होगा। ठीक है, अभी इसमें हमें मालूम है कि सेल हाइड्रोजन, जो सेल हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका पोटेंशियल 0 है, एंड ये क्या है, माइनस। तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे Zn क्या काम कर रहा है, Zn काम कर रहा है एनोड, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कर रहा है कैथोड। तो कैथोड के लिए मैंने रिएक्शन आपको क्या दिया है, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आवर आंसर विल बी डी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या दिया है, कंसिडर अ गैल्वानिक सेल, अभी ऐसे मेंशन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी, ए जो है, ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बी के अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ए सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A2 प्लस प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बी प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बी में जा रहा है। तो अगर हमें बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर ये नेट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, 2b प्लस प्लस a गिव्स A2 प्लस gives A2 प्लस प्लस 2b, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे, बी वाली रिएक्शन है। अभी इसमें which of the following net reaction takes place in a galvanic cell containing copper electrode and sanded hydrogen electrode। अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो कॉपर है ये पॉजिटिव है, तो कौन कौन एनोड की तरफ से काम कर रहा है, कौन कैथोड की तरफ से काम कर रहा है, कैसे बताएंगे। ठीक है, अभी 0 है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H प्लस is getting converted to hydrogen gas, platinum, salt bridge, यहाँ पे क्या होगा, Cu and Cu2 प्लस। ये कॉपर एनोड की तरह से काम कर रहा है, इसीलिए कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन कैथोड की तरफ है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस कौन सी होगी, आंसर क्या होगा इसका, Cu solid getting converted to Cu2 प्लस, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, Cu solid getting converted to Cu2 plus and H plus getting converted to H2। तो ये जो रिएक्शन लिखोगे तो कैसे रिएक्शन लिखोगे, Cu getting converted to Cu2 plus with loss of 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो H प्लस आयंस है, ये वाले, ये H प्लस आयंस क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, कॉपर प्लस 2H प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस एंड H2। तो ये रिएक्शन हमें कहाँ पे मिल रही है, ए वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन करेक्ट है। ठीक है,
अभी ये जो रिएक्शन है, ये जो सेल है, वी आर हैविंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सेल पोटेंशियल। तो सेल E0 सेल का फॉर्मूला हमें मालूम है, E0 सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये वाला नर्न्स इक्वेशन है। ये नर्न्स इक्वेशन हम जो देख रहे हैं वो नर्न्स इक्वेशन किसके लिए है? एट 25 डिग्री सेल्सियस के लिए है। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 NR अपॉन NF, ठीक है। तो RT अपॉन NF ये वाला फॉर्मूला आता है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ के, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला याद रखने से आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दिया है, इससे अच्छा आप 0.06/n इतना ही याद रखो, आपको आंसर आने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने किस टेम्परेचर पे लिया है? 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस अगर मेंशन करके दिया होगा तो टेम्परेचर की जगह पे आप 273 केल्विन ये टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करके वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। बट फिलहाल सीईटी में आपको खाली ये वाला पार्ट आने वाला है, ठीक है। फिर बाद में डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी हमें मालूम है, तो ये कहा जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, दिस इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। व्हाइल एज ये जो है ये है ओनली गिब्स एनर्जी। सो खाली गिब्स एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। तो E सेल का फॉर्मूला ये वाला है, E0 सेल का फॉर्मूला ये वाला है, दोनों वैल्यूज अलग अलग हमें मिलेंगे, ठीक है। आगे E0 सेल का फॉर्मूला दिया है, दो फॉर्मूला हमें मालूम है E0 सेल के, ये वाला एक फॉर्मूला मालूम है एंड ये वाला एक फॉर्मूला मालूम है E0 सेल के लिए। तो ये याद रखो 0.06/n इंटू लॉग ऑफ के कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड के यहाँ पे फॉर्मूला प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या दिया है? फॉर अ सेल रिएक्शन हमें सेल पोटेंशियल इज लेस देन E0 सेल बाय। अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन टाइप है। अभी अगर हम देखेंगे आंसर इसका तो ए है फिलहाल। समझो मैंने n की वैल्यू अगर 1 कंसिडर कर ली, लेट अस कंसिडर वैल्यू ऑफ n एज 1, तो ये क्या लिखेंगे आप? E0 सेल माइनस 0.059/1 इंटू लॉग ऑफ 10 अगर आएगा तो लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? 0.59 से E0 सेल इज लेस देन 0.59, ओके। फॉर द रिएक्शन सेल पोटेंशियल, ये जो सेल पोटेंशियल है E सेल, ये सेल पोटेंशियल इज लेस देन E0 सेल बाय 0.0592, ये प्रूव होगा, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू कैसे आने वाली है यहाँ पे? log 10 की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ये ऊपर Zn2 प्लस का क्या, Zn क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दिया है? 1 मोल। एंड Ag का क्या हो रहा है? Ag प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag, तो उसका क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? 1, एंड रिडक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1। तो वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको log 10 मिलेगा एंड यू विल गेट द आंसर एज E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059, ये मिलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इस पूरे प्रोसेस में देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में n की वैल्यू क्या है? 2 है, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? n की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्शन वाला एग्जांपल है। इसमें इसमें देखते कि क्या आ रहा है वो एग्जांपल। तो यहाँ पे भी सेम ही टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे? Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन भी वही आएगा, Zn प्लस 2Ag। अभी ये मैं रिएक्शन लिख के ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का, Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड Ag का क्या हो रहा है? Ag का +1 चार्ज है,
Ag is getting converted to Ag solid. तो ये Ag क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट हमें क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने, इसीलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऐसे करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे। तो नेट रिएक्शन जो होगी वो नेट रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2Ag, ये वाली हमारी क्या होगी, नेट रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी इस नेट रिएक्शन में हमें मालूम है n की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो E0 सेल इज इक्वल टू माइनस E0 सेल माइनस इज इक्वल टू नहीं आएगा, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, अभी हमें क्या दिया है यहाँ पे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिक्रीजेस टू 0.1 दिया है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ये वाला लिखेंगे। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया था, बट वो डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, 0.1 पे डिक्रीज हुआ है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 0.1 आएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे आओगे, Ag के लिए आओगे, तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है, 1 मोलर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, log 10 to the -1 ये वैल्यू आएगी। तो ये जो -1 है, ये -1 आगे आएगा, आपको क्या मिलेगा, E0 सेल प्लस 0.059/2। तो ये जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिक्रीजेस ऐसा है, तो EMF ऑफ द सेल क्या होगा, देन द EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस बाय 0.0296। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी एग्जांपल्स है। आज हम इधर ही ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के MCQs मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।